اللہ تعالیٰ نے आ जाइए بیٹا بھاگ کے آ جائیں, میرے بچے سب سے آگے بیٹھا کریں, آئیے. ہم جب بھی کوئی اچھی بات کریں گے تو ہمارے بچے سب سے آگے بیٹھیے, آئیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم صبح سے شام اور شام سے صبح تک گنتے رہیں زندگی گزر جائے گی اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل نہ کیجیے گا. اللہ ہم چاہے مشکل وقت میں ہوں, اچھے وقت میں ہوں, کسی بھی حال میں ہوں, اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اور شکر گزاری اتنی بہترین چیز ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہماری نعمتوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے پہلے دی ہوتی ہیں ان کو مزید بڑھا دیتے ہیں. پہلے ہی مالک کا اتنا کرم ہے کہ جتنی اللہ نے ہم سب پر, ایک ایک انسان پر جتنی اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے, ہم تو اسی کو سمیٹ کے تھک جائیں اور ہماری زندگی گزر جائے اور ہم انہی چیزوں میں خوش رہنا سیکھ لیں. لیکن کیا بات ہے کہ رب کہتا ہے تو شکر گزاری کر, تم جو دیا ہے اس کو بھی بڑھا دوں گا. تو آئیے ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے شیلٹر ہوم میں اگر اس وقت گرمی بہت اور ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بھی آ گیا تو سب بچے بڑے کہیں گے اللہ تیرا شکر, اس لیے کہ وہ ٹھنڈا جھونکا بھی رب نے بھیجا. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی ہم سے پوچھے آپ کیسے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اپنی زبان پر یہ لفظ رکھ لیجئے, اپنے دل میں یہ بات اتار لیجئے کہ ہر بات میں اللہ کا شکر ہے. جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ مشکل وقت بھی گزار دے گا, وہ نعمتوں کو بھی بڑھا دے گا, وہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا, اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہم سب مل کر جب کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے موقع ہوتے ہیں خوشی کے, تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ بچے اور بڑے میرے شیلٹر میں یہاں پر کون کون دن میں کئی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شاباش شاباش ماشاءاللہ, سب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. زرینہ اماں, ہماری پیاری سی زرینہ اماں ہے بھائی, اٹھا لیا, ان کو بھی دکھائیے. یہ ہماری پیاری سی زرینہ اماں ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھانا یہ تھوڑا سا بھول گئی, ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کیجیے. زرینہ اماں سے بات شروع کر دیتے ہیں. زرینہ اماں, آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں؟ بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہیں. چل کیا بات ہے, زرینہ اماں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہیں, بہت بہترین چیز ہے. ہمارے پاس سیما موجود ہیں. سیما, آپ اللہ تعالیٰ کا شکر, ہم سب شکر ادا کرتے ہیں, آپ آج کل خاص طور پہ کس بات پہ شکر ادا کر رہی ہیں؟ میں اللہ پاک کا شکر ادا ایسا کر رہی ہوں کہ یہاں اتنے پیارے پیڑ اور یہ درخت ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ آکسیجن ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ٹھنڈک رہتی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. جی جناب, یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں تو پودے بہت اچھے لگتے ہیں. خاص طور پر ہم سب کو اپنے نیم کے اس پیڑ سے بہت محبت ہے. یہ ہمارے کمروں کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے, ہمیں بھی ٹھنڈک دیتا ہے. یہ نیم کا ہمارا درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت سایہ دار درخت ہے. تو ہمیں ان درختوں سے, اور درخت بھی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے پھول پودے سبزیاں, کیا کیا چیز مالک نے ہمیں دی ہیں, پانیوں میں بھی دی ہیں, مچھلیاں, اور وہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں, چاہے وہ جھینگے ہیں, مچھلی ہے, اور بہت ساری چیزیں, اور جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں, اور جو یہ درخت ہیں جن کی چھاؤں میں ہم بیٹھتے ہیں. تو رب تیرا شکر کہ تو نے یہ سب چیزیں ہمیں عنایت کر دی. جی میری بہت پیاری بہن جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح اور اللہ کا نام ہوتا ہے. یہاں شیلٹر میں زندگی آسان نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کس بات سے ان کا دل ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, آپ بتائیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہم ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کائنات دی, اس کے بعد اس میں ہمیں ایک خوبصورت زندگی دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک خوبصورت رشتے دیے جنہیں ہم نبھاتے ہیں, اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, اور ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. بہت زبردست بات ہے. رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے. ان رشتوں کو ہم نبھاتے ہیں. رشتے ایک تو خون کے ہیں اور دوسرے رشتے انسانیت کے ہیں, جو یہاں پر میرے پاس شیلٹر ہوم میں موجود ہیں. انسانیت کے رشتے, یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو, اور میں نے اللہ کا یہ حکم ہے کہ دوسرے انسان پر رحم کرو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نے تھے کرو بیاں.
फरिश्ते सजदा करते रहते हैं अल्लाह को तो ना हमारी इबादत की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की, फिर भी वो गफूरुर रहीम हमें बहुत चाहता है। हम ही हैं ऐसे टूटी फूटी इबादतें लेके उसके पास हम हाजिर होते हैं कि उन्हें कबूल करें, और अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आप बताइए जनाब, आप कैसे शुक्र अदा करती हैं? मैं अल्लाह ताला का इस बात पे बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, और यहाँ रह कर भी मैं मतलब ये है कि अपने काम सब खुद करती हूँ, और मतलब किसी की मोहताज नहीं हूँ, और इस बात पे मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन बात है कि इंडिपेंडेंट है, अपने हाथ पैर से अपने जहन से सारे काम कर सकती हैं। उस मालिक का करम एहसान है, क्योंकि मेरे पास शेल्टर होम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं या जहनी तौर पे कोई माजूरी है। अल्लाह ताला ने सबको इंडिविजुअल बनाया है, लेकिन यकीन जानिए जब इंसान मोहताज होता है ना, या उसको किसी इंसान की मदद लेनी पड़ती है अपने ज़रूरी कामों में, तो हम में से जितने लोग सेहतमंद हैं, अपने काम खुद करते हैं, तो सुबह से शाम, शाम से सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, वो बेड रिडन भी होते हैं, तो अगर उन्हें बाथरूम जाना होता है तो उनको पहले किसी को उठाना होता है, फिर वो शख्स उनको लेके बाथरूम जाता है, फिर आता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि हम सारी ज़िंदगी खुद अपनी ये सारी ज़रूरियात और अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, हम कभी परवाह भी नहीं करते। अगर हमें एक हफ्ते के लिए भी बिस्तर पर पड़ना पड़ जाए, खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए, तो पता चलता है कि कितनी नेमतों से रब ने नवाजा है। तो हमारा तो शुक्र हर लम्हे हमारा शुक्र बनता है। बैठिए बेटे। और मेराज, आप क्या बात करना चाहेंगी बेटे? शुक्रगुजारी में माशाल्लाह आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, तो आजकल आपके जहन में अल्लाह ताला की क्या बात है जिस पे आप शुक्र अदा कर रही हैं? मैं चाहती हूँ, मैं यही दुआ कि हर हाल में हर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें हम अगर नमाज पढ़ें तो क्या ही बात है। तो अगर नमाज के हवाले से बात करूं तो मेरे पास बानो बैठी हैं, नमाज भी, तहज्जुद भी, माशाल्लाह। बानो, क्या बानो के साथ मोहब्बत का इजहार करूं? बस बानो से यही पूछ लेती हूँ कि बानो, आप अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर रही हैं? ये मैं बहुत बीमार थी, अल्लाह ताला ने बेहिसाबा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे सेहत दी और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मैं मोहताज नहीं हूँ, और अल्लाह ताला ने इज्जत की छत दी और मेरी ज़िंदगी अच्छी सुकून से गुजरी। ये एक इज्जत की छत ना, यहाँ बहुत सारी औरतें, कुछ जुमले मखसूस हैं कि इज्जत की छत दी, क्योंकि इज्जत की छत बहुत कीमती है। ये उनको पता चलती है कि जिनके पास इज्जत की, कभी अपने ही घर वालों से झगड़ा हो जाए, छत छिन जाए, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल होती है। मशल बैठी हैं, मशल आपसे बात करते हैं। भाभी, वैसे तो अल्लाह ताला की हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रहने के लिए छत दी, मुझे रिज़्क़ दिया खाने के लिए, और जो है इतनी अच्छी फैमिली दी है जिसके साथ मैं रहती हूँ हंसी खुशी। बहुत अच्छी बात है, ये वाकई मशल की फैमिली है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ शेल्टर होम में जो भी एक साथ रहते हैं, खूनी रिश्ता किसी का भी नहीं है। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग यहाँ पे एक साथ आके रहते हैं, तो साथ रहने में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन है ये एक फैमिली, ये हैं सब एक फैमिली की तरह। कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और माशाल्लाह मशल एक सेहतमंद बच्ची है, और ये बच्ची इतनी प्यारी है कि अगर किसी को उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। यही शेल्टर होम का कल्चर है, और इसी तरह हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब मेरे पास जो बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है खामोश, मैं चाहूँगी मेरी ये बच्ची बताए अल्लाह का शुक्र ये कैसे अदा करती हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने पीने के लिए तो सब कुछ दिया। तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, आपने जगह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ। बात बिल्कुल ठीक है। इंसानों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का, अपने रिश्तों का, अपनी दोस्तों का, अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा कीजिए। जो लोग अपने मोहसिनों को याद रखते हैं, अपने खैरख्वाहों को याद रखते हैं, उनको शुक्रिया कहते हैं, तो उनकी नेमतों में भी अल्लाह इजाफा कर देता है। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाऊंगा। तो ये बच्ची उन्हीं में से एक है जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मेरी दुआ है कि इसकी हमारी सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा दे। सलमा बैठी बेटा, सलमा बानो बहुत प्यारी सी हमारी बैठी हैं। जी सलमा बानो, ये भी बहुत प्यारी सी एक दुआ पढ़ती हैं शुक्रगुजारी पे। मैं चाहूँगी आप जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन्हें बताइए कि कौन सी दुआ है जो पढ़ती हैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना साकना व जालना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान खिलाए पिलाए मुसलमान बनाया। आप अल्लाह का शुक्र और किन किन अल्फाज में अदा करती हैं? ये एक बहुत जामे दुआ जो ये इन्होंने अपनी आप के साथ शेयर की, और आप किन किन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं? उठते बैठते शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, उठते बैठते करती मैं तो। अल्लाह तूने इज्जत से रखा, मुझे यहाँ रखा, इज्जत से रखा, हर वक्त शुक्र अदा करती उठते बैठते। जिस हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है, ये बोलती अल्लाह से। अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, क्योंकि जब हमारी आंखों में नमी आती है तो अल्लाह हमारे बहुत करीब हो जाते हैं। जिस हाल में भी अल्लाह रखे, अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि वाकई अल्लाह का शुक्र है कि वो इज़्ज़तों को सलामत रखे। ये मेरे पास माशाल्लाह चली गई, फिर दोबारा आ गई, और इनके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह हमें जिस हाल में रखे, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, हमें अल्लाह बुरे लोगों से, बुरी सोबत से, बुरी घड़ी से बचा के रखे, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। सलमा बानो, बहुत माशाल्लाह आपने प्यारी दुआ की है। अब इसी तरह की चीज़ें, ज़ाहिर यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है वो बहुत सख्त है, वो बहुत सख्त है। हमने घर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन इनसे घर छूटा, इनसे प्यारे छूटे, कभी प्यारों ने इनको छोड़ दिया, कभी किसी वजह से इन्होंने प्यारों से फासला किया, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ होती है। उसके बाद एक अल्लाह की ज़ात है, वो नहीं छोड़ती, वो हमें कभी हमारे लिए हर तरह की आसानी अल्लाह की ज़ात करती है। और फिर मैं यही कहूँ कि सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह का है। सलमान, आप किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बताइए। अल्लाह ताला का इसीलिए शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को 2 बहनें दी और अम्मी अब्बू जी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल। और मैं यहाँ आ गई तो मेरे पास माहम है। आयशा से माहम, एक मिनट रुक जाओ। आयशा जल्दी से तुम बताओ, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी बेटी है। आयशा बताइए, वहाँ देख के बताइए, जोर से बोलिए। आपने देखा, हमारी प्यारी सी बच्ची को भी बहुत सारे अल्फाज भी आते, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद या खाने से पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। वो चीज़ें हमारे बच्चों के जहन में हैं। मैं माहम से बात कर रही थी। माहम, आप अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा करती हैं, और आजकल किस चीज़ पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ सबसे ज़्यादा इस बात पे कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा फरमाई। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, और उन अल्लाह ताला ने सब मुश्किलात दूर फरमा के मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी। देखिए, ये इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। ये है एक पॉजिटिविटी। मेरी प्यारी सी बच्ची ये भी बताएंगी कि अल्लाह ताला से आपकी, हम सब बातचीत करते हैं, सारा वक्त अल्लाह से ही तो बात होती है, वही तो हर चीज़ हमें अता करते हैं। आप अल्लाह ताला से क्या अच्छा, दुआ का भी होता है कि हम इंसान ना कभी कभी जिस चीज़ की तरफ जहन चला जाए उस चीज़ की तरफ हम ज़्यादा दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, और बस नहीं चलता। हम तो इंसान है ना, हम तो चाहते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी नेमतें रहमतें सब हमें मिल जाए। आप अल्लाह ताला से क्या दुआ करती हैं? मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, बहुत खुश हूँ, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जगह दी रहने के लिए। आती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, लेकिन अल्लाह ताला उसे एक आजमाइश बना के वो भी दूर कर देता है। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले, मेरे चाचू ने बताया था कि कुरान में भी लिखा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन का उसका मतलब ये है मायने कि अल्लाह ताला कहता है सब्र करो, और सब्र करो कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो इसलिए मैं हर चीज़ पे जो भी मुश्किलात आती है, मैं पहले तो बहुत सैड होती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये वाला बुरा टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जब अच्छा टाइम देता है तो थोड़ा सा बुरा टाइम भी देता है। ठीक है, वो एक बात है ना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये सुनकर हर एक को सुकून और तसल्ली होती है कि बुरा वक्त है तो वो भी गुजर जाएगा। दूसरा ये कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये चंद ऐसे जुमले हैं जो दिल को बहुत तक़वियत देते हैं। अब यहाँ मेरी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं, लेकिन फिर किसी और वक्त, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल सेशन है, हम इस तरह से बातचीत करते हैं। कभी हम एक दूसरे को सॉरी कहना सीखते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो एक दूसरे को सॉरी कैसे कहना है। कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कभी अपने प्यारों को थैंक यू कहते हैं। मुख्तलिफ, ये बहुत छोटे छोटे से अल्फाज हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में रोशनी बिखेरते हैं, सुकून बिखेरते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि शेल्टर होम में जो भी आए वो अल्लाह ताला की इन बातों को, इन प्यारे प्यारे जज्बों को जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के दिलों में डाले हैं, हम अंदर से, अल्लाह ताला जो है हमें अच्छा ही देखना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं। ये हमारा अपना नफ्स है जो हमें गुमराही पर लेकर जाता है। तो कोशिश है कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस नफ्स को, या जो शैतानी नफ्स है, इसको हम हरा सकें।
اللہ کا نام لے کر, نماز پڑھ کر, اللہ کا ذکر کر کر, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کر ہم اللہ کا قرب پال لیں اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں, کیونکہ اللہ کے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں. جزاک اللہ.